Good morning children, this is class 4 social studies, and in this video today I am starting a new chapter, that is chapter number 4. Okay, motions of the earth. Now before starting this video I would like to tell you that from this chapter we are starting geography part. Okay, till now we were studying about the history part, okay, and some part of civics we had studied. Now in this 4th chapter we are starting some work in the geography. Okay, this is more interesting. I think you will also be interested to study this part. Okay, because as I would like to tell you that in class 4 or up to 5, class 5, social study is the combination of 3 subjects. Okay, history, civics and geography. So we get some chapters of civics, some chapters of history, some chapters of geography. So now from here we are starting geography part. Okay, motions of the earth. This is totally different from the previous chapters, because in those chapters we were studying about the history, then civics, now geography. Geography means in this part we will be studying about the natural forces, we can say, the things, the objects which are found in nature. हमारे प्रकृति के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, their activities, sun, moon, earth. So okay, I am just giving you an example. अभी इसमें हम यूजुअली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अबाउट मोशन का मतलब यहाँ पे मूवमेंट से है. ओके, द मीनिंग ऑफ द मोशन इज हियर मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ यू नो ऑन विच वी लिव. अर्थ पे तो हम लोग रहते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं. इट इज़ राउंड शेप. ओके, इट्स शेप इज़ राउंड, गोल उसका शेप है. सो आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो फ्रॉम हियर, चैप्टर नंबर 4, video number 1. Here I am going to read this. Every day we see the sun rising in the east. हर दिन हम लोग देखते हैं कि हम सूरज जो है, सन जो है वो it rises from the eastern direction, east direction. Okay, by afternoon it is right over our head. और आफ्टरनून होते होते हम लोग देखते हैं, we see that it is just right above our head. वो हमारे सिर के ऊपर जैसे आ गया है. ठीक है. एंड बाय इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट. और शाम को हम देखते हैं कि इट गोज इन द जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वेस्ट. इट राइजेस. वी एवरीबडी नोज दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट. दिस मेड द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स बिलीव दैट व्हाइल द अर्थ इज स्टेशनरी and the sun and the other heavenly bodies move around the earth. पहले लोगों का क्या बिलीव था, क्या विश्वास था कि अर्थ जो है वो अपनी जगह पे है और ये सन और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं. बिकॉज दे हैड नो आइडिया, नो साइंटिफिक प्रूफ कि विच वन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी माने रुका हुआ है एक स्थान पे, फिक्स टू वन प्लेस. ओके, and moving, you know what is the meaning of movement or motion or moving is same. Then it was Copernicus. He was a scientist who first discovered that the sun is stationary and it is the earth that is moving. उसने पहली बार बताया कि जो अर्थ है, जो सन है वो स्टेशनरी है, वो नहीं घूमता, वो अपनी जगह, इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस. स्टेशनरी माने एक जगह पे ठहरा हुआ है. ठीक है, एक जगह पे रुका हुआ है. एंड इट इज़ द अर्थ दैट इज़ मूविंग. और जो अर्थ है वो मूव करती है. ही टोल्ड दिस साइंटिफिक फैक्ट टू द होल वर्ल्ड, Copernicus. Okay, now we will see few lines about the Copernicus. Now we see Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer in the 16th century, was the first to say that it was the earth that was moving around. Okay, moving around the sun. He also declared that the earth rotates on its own axis. और उसने ये भी कहा कि
मूव तो करती है, साथ में वो अपने एक्सेस पे भी घूमती है। ठीक है, एक्सेस अभी क्या है ये हम आपको बताएंगे। ओके, उसने ये बताया कि घूमती भी है और अपने ही एक्सेस पे एक बार घूमती है। ठीक है, घूमते घूमते ही वो पूरे सन का चक्कर लगाती है। सो वी विल स्टडी नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, इट वाज डिक्लेयर्ड इन द 16th सेंचुरी। ये क्लियर हुआ कि अर्थ rotates around the sun and the sun is stationary, and not even earth, all other planets also revolve, or we can say make a round or motion, they move around the sun. Okay, now concept of axis, ये क्या है हम लोग देखें इसको। let us understand the term axis। axis क्या है? ठीक है, the axis is an imaginary line running from North Pole to South Pole. The axis of the Earth is not straight. It is tilted at an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit. ये माना जाता है, एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है कि वो सेंटर ऑफ द अर्थ है और starting from the North Pole in the north direction and just coming to the South Pole. ठीक है, एंड और जो उसका बीच की धुरी जिसको कहते हैं, धुरी बोलते हैं एक्सिस को, बीच का सेंटर पॉइंट जो है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कमिंग अप टू द साउथ पोल, वो स्ट्रेट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो बीचों बीच में हो अर्थ के। इट इज़ टिल्टेड, यानी एक साइड पे झुका हुआ है। ठीक है, टिल्टेड मीन्स वन साइडेड, वो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है। ओके, स्लैंटिंग है थोड़ा सा। ठीक है, वी कैन से स्लैंटिंग माने झुका हुआ एक साइड पे, तिरछा बोलते हैं जिसको, वो है। और ये 66.5 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी झुका हुआ मीन्स कि वो इतना स्ट्रेट नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन of the earth's axis, that is the length of the days and nights keeps on changing. The days are longer than the nights in summer. और because it is not straight, वो slanting है, उसका जो axis है उसकी वजह से, because of that the length of the days and nights keep on changing. In India, in our country, we see that the nights length is not same all the whole, we can say the whole year. Okay, now we'll see. In winter we have longer nights and shorter days. Winter में क्या होता है, the nights are long और days are short, दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती है। ठीक है, और in the summer the days are longer and the nights are shorter. रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। ठीक है, और जस्ट ऑपोजिट। If the axis of the earth was not tilted, days and nights all over the world would have been the equal throughout the year. और अगर ये tilted ना होता एक्सिस उसका, तो क्या होता, डेज और नाइट्स जो होते वो बराबर होते थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल वो एक बराबर होते हैं। दिस इज़ ए फिज़िकल फीचर वी कैन से चिल्ड्रन, जो कि हमेशा से है। इट इज़ नॉट चेंजिंग, वो हमेशा से ऐसा था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ओके, द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो कितनी तरह का होता है। ओके, नंबर फर्स्ट इट इज़ रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जहाँ अर्थ अपने ही आप में एक बार पूरा गोल घूम जाती है। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे, एक ही जगह पे घूम जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। एंड रिवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, एक पूरा चक्कर एक बार में वो अपने आप में पूरा घूमती है, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। फिर वो घूमती है पूरा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है। आई विल एक्सप्लेन यू कि रोटेशन
में कितना टाइम लगता है और हाउ मच टाइम द रिवोल्यूशन टेक्स ओके टू कंप्लीट. सो रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अपने ही धुरी पे, अपने ही उस पर एक बार घूम जाना पूरा वो रोटेशन कहलाता है. एंड रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन के और चारों ओर चक्कर लगाना, पूरा एक बार चक्कर लगाना, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. ओके, now you will see rotation of the earth. The earth spins on its axis from west to east. उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है. एंड completes one rotation in 24 hours. और वो अपना एक रोटेशन पूरा 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. वो एक बार पूरा घूम जाती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पूरा एंड तक. मीन्स पूरा एक बार पूरा राउंड एक राउंड गोलाई में घूम जाती है. ठीक है. वन रोटेशन ऑफ द अर्थ takes 24 hours, means a full day. One rotation of the earth on its axis is what we call a day. Yes, as I told you right now, that is called duration of 20, because the earth takes 24 hours to rotate, and that is called one day. Children, you must know that one whole day is of 24 hours. डे एंड नाइट मिला के पूरा इट इज़ वन फुल डेज. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज. थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं इसमें अबाउट द रोटेशन. वी विल सी. चिल्ड्रन, आई एम नाउ रीडिंग फ्रॉम चैप्टर द सेम चैप्टर, पेज नंबर 30. ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और रोटेशन से क्या बनता है, डे और नाइट बनते हैं. बिकॉज द पार्ट विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन, इन दैट कंट्रीज वी कैन से इन दैट प्लेस देर इज अ डे, एंड द पार्ट विच इज बिहाइंड द अदर साइड देर इज अ नाइट. व्हेन द अर्थ राउंड टर्न्स इट फेसेस द सन, तो जो डार्क प्लेसेस थे वहाँ दिन हो जाता है वहाँ, और वो जो जिस प्लेसेस में पहले दिन था वो दे गो ऑन द अदर साइड एंड दे डोंट गेट द सनलाइट, सो देयर इज अ नाइट इन दैट पार्ट. दैट इज़ वाई in the world we can say every country doesn't have the night and day at the same time. सबका different time होता है. Okay, so the side of the earth which faces the sun has day, and the side of the earth facing away from the sun has night. As I told you right now, जो सन को फेस करता पार्ट वो वहाँ पे दिन होता है, और जो बैक साइड होता है वहाँ पे रात होती है. ठीक है. लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं. नंबर 1, इट कॉजेज डे एंड नाइट. उसकी वजह से रात और दिन बनते हैं. ठीक है, रोटेशन होने से. इट गिव्स अस ए डे ऑफ 24 आवर्स. और हमें 24 घंटे का पूरा एक फुल डे मिलता है, दिन और रात मिला के. ठीक है. इट कॉजेज, सपोज जैसे अभी रात के 12 बजे है, सपोज फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, आप एक नए दिन की स्टार्टिंग हो रही है. ठीक है. अब ये आज जैसे रात के 12 बजे हमारा 14 डे लग जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, और टिल द नेक्स्ट रात में 12 बजे तक वो एक वन फुल डे माना जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 इन द नाइट टिल द नेक्स्ट 12 in the same day means 24 hours. Okay. Then number 3, tides are caused twice a day. Tides जो होते हैं वो तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसको बोलते हैं tides. जैसे ओशंस जहाँ होते हैं, सी होता है, ओशन होते हैं, स्पेशली सी, वहाँ पे टाइड्स उठते हैं, वो भी इसी की वजह से होते हैं. ठीक है. It causes bulging of the earth at the equator and the flattening at the poles. और इसकी वजह से जो इक्वेटर मीन्स जो हाफ लाइन बीचों बीच में से काट दिया जाए, जैसे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज़ इमेजनरी लाइन. एक इमेजनरी लाइन मानी गई जिसको इक्वेटर कहते हैं, नहीं वो, बट एक इमेजनरी लाइन मानी गई है कि वो अर्थ को बीचों बीच में से गुजरती है, जो कि
नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स में उसको इक्वेटर काट देता है। कटा नहीं है, लेकिन वो माना जाता है कि ऊपर का नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ठीक है। और फ्लैटिंग ऑफ द पोल्स, ऑफ जो पोल्स है, जो ऊपरी अपर मोस्ट पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट है वो फ्लैट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मेक्स अस फील दैट द हेवनली बॉडीज लाइक द सन एंड द मून आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और उसको देख के हमको हमारा जो रोटेशन होता है अर्थ का वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, उसका मतलब उसका जो डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, ठीक है। और ऐसा हमें ऐसा फील होता है बिकॉज हमारी अर्थ रोटेट करती है, बट वी डोंट फील दैट। और हमें ये फील होता है कि जैसे कि अदर हेवनली बॉडीज़ आर मूविंग बिकॉज वी सी दैट सन इज राइजेज इन द ईस्ट in the morning and we see it sitting at the वेस्टर्न साइड, ओके, पश्चिम दिशा में हमारी वो डूबता है। तो ऐसा समझ में आता है, लोगों को लगता है था पहले, बट ये अब नाउ इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट दैट एवरीबडी नोज दैट अर्थ द सन डजंट मूव, वो अपनी ही जगह पे है, ये अर्थ घूम के आ गई है। और ऐसा फील होता है कि हम सन हमारे वेस्ट में चला गया है, बट सन इज़ स्टेशनरी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी अर्थ मूव कर गई है, इसलिए वो फील होता है कि सन जो है वो मॉर्निंग में तो ईस्ट में था और अब इवनिंग में वेस्ट में चला गया, लेकिन एक्चुअली सन नहीं जाता, हमारी अर्थ जो है वो मूव कर जाती है और हमें ऐसा फील देती है कि जैसे कि एज इफ द सन इज़ मूविंग, ओके। तो दिस इज़ ए फैक्ट, बट दिस इज़ अनदर ट्रूथ वी कैन से, अ फैक्ट वी कैन से, कि हमें वो फील नहीं होता है कि कुछ इस तरह का सिस्टम है कि वी डोंट फील कि मूविंग द अर्थ इज़ मूव, अर्थ मूव्स, वी डोंट फील दैट। अगर ऐसा फील होता तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह का फीलिंग आता है एवरी टाइम हम लोगों को लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और चक्कर खा रहे हैं और हमारे दिमाग में भी चक्कर आ रहा है, सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। लेकिन इट इज़ गॉड्स क्रिएशन, उसने इस तरह से बनाया है कि वी डोंट फील दैट अर्थ इज़ मूविंग, इट मूव्स बट वी डोंट फील इट। दैट इज़ अनदर गुड फैक्ट, okay children. I think it is enough for today in this video, okay. Thank you.